Okay, beta, the recording of the meeting is now on. So let's continue with our topic. So next concept which we have in chart work is raising or dipping a lighthouse right ahead with a certain current. Okay? Or you can say having the lighthouse right ahead at a certain distance with a prevailing current in that area. So this is a peculiar topic which comes in the phase 1 paper. So let us see what is the scenario and how do we obtain the answer. So let's open up the presentation. Okay, so जो ये topic है बेटा, that is sighting an object right ahead at a certain distance with current but without leeway. So let us say we have a lighthouse. Let us say we have this hook head light here. They tell us that there is a particular current in this area. They will give us the set and rate of the current, and they will tell us that the vessel is right now at a particular position. They will give us the position of the ship also. And then they will ask us, find out the course to steer so that you have this lighthouse right ahead at a certain distance. Let us say 15 miles off or 10 miles off, this lighthouse should be right ahead. Now, if there was no current, this question is a no-brainer. The question is very, very simple then. You just join the ship with the lighthouse and steer this course. So you will have this lighthouse right ahead all the time. You don't need to worry. But the problem here is, if you have a certain current in the area, let's say we have a certain current in the area like this. Now, if you steer this course toward the lighthouse, the current will be pushing you down south, and your course made good would be something like this. So this lighthouse will not remain right ahead if you proceed in this way. So this is where the problem is. So how do we solve this question? Let's see. First of all, let us see what is the data which is provided to us. They will give us the position of the ship at a certain time. They will give us the engine speed of the ship, and they will give us a object which needs to be sighted right ahead. This object should be right ahead at a certain distance. They will give us the distance in the question, 10 miles, 15 miles, 20 miles. So at that distance, the object should be right ahead of us. And they will also tell us the information about the current. So set and rate of the current will also be given to us. What is required to be found in this question? We need to find out what is the course that we should be steering so that this lighthouse is right ahead at a particular distance. So what we do in these type of questions is, first of all, we plot our position. So the position in this question is given here. So let us plot our position and let us mark it with A. So you see here I had written fix, which is A. Now what we need to do further is, this is the object which they have given us. That is the hook head light. It is marked as O. Another thing which they will give us is the distance at which it should be sighted. So let us say they want us to sight the object at a particular distance. Let us denote this with D. And they will also tell us what is the set and rate of the current. So let us assume in this question, we have the current setting like this. So this is the current vector. All this information is provided to us.
We have the initial fix, we have the light which is to be sighted right ahead at a particular distance. They have given us the distance and they have given us the set and rate of the current. So let's see now how do we go about finding. Required items are course to steer to sight the object right ahead at a distance t. So what do we do here is, first of all, we calculate the time to cover this distance t with our engine speed. Our engine speed is provided. So whatever distance they have given us, we first see how much time would it require to cover this distance with our engine speed. So we will have a time value. सर ठीक है ऑफ कोर्स, बट सर वो जो टाइम हम इंजन स्पीड से निकालेंगे वो थोड़ा गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि करंट लग रहा है तो फोर्स मेड गुड तो लगा के तो कम अभी उसको अभी ठीक कर देंगे उसको। देखो अभी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जी सर। ओके, तो अभी तो हमने सिर्फ जितना ये डिस्टेंस उन्होंने दिया उस डिस्टेंस को एज पर अवर इंजन स्पीड कितने टाइम में कवर कर रहे हैं वो निकाल रहे हैं। तो अब हम देखेंगे आगे हाउ डू वी यूज इट। Whatever time comes to us, we calculate the drift of the current for that much time. Let us say in a particular question, the time comes out to be 40 minutes. So what we will do is, the set and rate of the current is given to us. So we will find out in 40 minutes how much the current is going to drift us. So once you have found this, you can now plot the current vector. The set of the current is given to us. The drift of the current we have calculated. This is the time taken to cover this distance d with our engine speed. So what we will do now is, from O, that is the lighthouse, we draw the given current direction and the calculated drift. So we apply it on O. The direction set of the current was southerly. So southerly set of the current, we mark it with 3 arrows and we cut it equal to the drift which we had calculated. I had assumed 40 minutes. So in 40 minutes, whatever the current is drifting us, that is what we cut this current vector for. So that is the length of the current vector. And we take this as point B. So this is our 40 minutes के हिसाब से करंट काटेंगे ना सर? 40 मिनट्स के हिसाब से एग्जैक्टली बेटा, जितना टाइम हमें ये डिस्टेंस कवर करने में लगेगा एज पर अवर इंजन स्पीड, उतने ही टाइम के लिए करंट को हमने यहाँ पे बनाना है। ओके सर। ओके, तो अब ये करंट वेक्टर हमारे पास आ गया एंड वी हैव दिस पॉइंट बी। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी डू इज ड्रॉ एन आर्क of radius d around object O. तो ऑब्जेक्ट O पे हमने कंपास रखी, जितने डिस्टेंस पे हमने इसे राइट अहेड साइड करना है उतने डिस्टेंस का हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। सो लेट अस ड्रॉ एन आर्क। ये मैंने कंपास को O पे रखा एंड आई ओपनड इट इक्वल टू डिस्टेंस d और मैंने ये आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सो वी हैव दैट आर्क ऑन द चार्ट नाउ। नाउ व्हाट आई विल डू इज draw a line AB. I will join A with B. A is our initial position and B is the end of our current vector. तो मैंने इन दोनों को join कर दिया। So if I join them with this line, wherever it cuts this arc, उस point को मैंने नाम दे दिया C. So let us call this point as C. This is point C now. Okay, so after this, what is the next thing which we do? We have all these items on the chart now. Initial position, the current vector applied on the light. We have joined the initial position with the end of the current vector. We have an arc which gives us the distance at which the lighthouse should be sighted right ahead. What I do? आर्क से फिर से बता दो सर एक बारी। आर्क से बता दो सर कैसे आया? ओके, आर्क बेटा कैसे आया? देखो, हमें उन्होंने डिस्टेंस दे रखा है
कि इतने डिस्टेंस पे ये लाइट हाउस हमारे राइट अहेड होना चाहिए। लेट अस से द डिस्टेंस गिवन इज 10 माइल्स। ओके, मैंने अपनी कंपस को इतना ही ओपन किया, 10 माइल्स ओपन किया कंपस को, और कंपस के सेंटर को रखा लाइट हाउस पे। लाइट हाउस पे यहाँ कंपस के सेंटर को रखा और मैंने ये आर्क ड्रॉ कर दी। ओके, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। दिस इज बेसिकली सेंटर्ड एट द लाइट। ओके बेटा, गॉट इट? यस सर। सर डिस्टेंस ज्यादा कैसे होगा सर? O to D का मतलब कैसे करेंगे सर? बेटा इस क्वेश्चन में ना हमें उन्होंने डिस्टेंस दे रखा है कि ये लाइट हाउस, लेट अस से द डिस्टेंस इज 10 माइल्स। ओके, सो दिस D इज इक्वल टू 10 माइल्स। 10 माइल्स पे ये लाइट हमें राइट अहेड दिखनी चाहिए। हमने इस लाइट को सेंटर लेके 10 माइल का एक सर्कल बनाना है। यहाँ पे बन जाएगा? ओके सर। ओके, लाइट को सेंटर लेके जितना डिस्टेंस दे रखा है, लेट अस से दिस इज डिस्टेंस D, इतने रेडियस का एक सर्कल बनाना है। मैंने पूरा सर्कल नहीं बनाया है, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी आर्क बनाई है। तो दिस इज दैट आर्क बेटा, दिस इज दैट आर्क। अब बन जाएगी बेटा? यस सर। ओके, तो वी हैव दैट आर्क नाउ। अब हमने A और B को ज्वाइन किया, एंड जहां पे ये AB लाइन हमारी आर्क को कट कर रही है, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया C। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू ज्वाइन दिस C विद O। ओके, जो अभी तक हमारे पास आया है, ये जो AB लाइन है हमारी, AB लाइन, this AB line is basically the course made good line. It is the course made good line, and CB जो है, that is from C to B, it is basically the distance made good in the calculated time. हमने टाइम कैलकुलेट किया था ना, जितने टाइम में हम अपनी इंजन स्पीड से लाइट हाउस का डिस्टेंस 10 माइल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। So CB is the course made good and the distance made good for that particular time. So I can mark it with double arrows. Now what I do is I join C with O. तो मैंने C को O के साथ ज्वाइन किया। ये जो लाइन आ गई हमारे पास, CO line, this line is basically my true course to steer. So I mark it with a single arrow. अब बेटा अगर आप देखोगे तो अब आपको पता चलेगा कि जो काम हमने किया है, दैट इज एग्जैक्टली फॉलिंग इनटू प्लेस। हमने सबसे पहले जो ये डिस्टेंस D था, इस डिस्टेंस D को एज पर अवर इंजन स्पीड कितने टाइम में कैलकुलेट कर सकते थे, वो टाइम निकाला था। ओके, सो बेसिकली इफ वी आर मूविंग फ्रॉम C to O, दिस इज द कोर्स विच वी आर स्टीयरिंग विद अवर इंजन स्पीड। तो CO is exactly our course steered vector. उतने ही टाइम के लिए हमने यहाँ पे करंट अप्लाई किया था। The current is applied for the same time. So from the lighthouse to position B, this current vector is exactly for the same time for which we had drawn the course steered vector, that is the CO vector, the blue vector. और अगर ये दोनों वेक्टर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हैं, then C to B has to be our course made good. C to B, which is our course made good, is the resultant of the course steered and the current vector. So blue vector और red vector का जो resultant है वो हमारा green vector है। अब देखो होगा क्या, हमारा जो शिप है वो A पोजीशन पे है। हमारा शिप कौन सा कोर्स स्टीयर करेगा, which is given by this blue line. So ship would be steering a course something like this. ये वाला कोर्स हमारा शिप स्टीयर करेगा, which is represented by the blue line. The current is acting southerly, so ship will not move on this track. The ship will be moving on this particular track. Green track पे ship move करेगा, और green track पे move करते करते जब हमारा शिप पॉइंट C पे आएगा,
at point C, this lighthouse will be right ahead of us. यही चीज हमें चाहिए थी. Sight an object right ahead at a certain distance with तो current. सर OC is equal to CB. OC is not equal to CB, beta. OC represents your engine speed. Okay, let me show you. OC represents your engine speed. मतलब सॉरी AC is equal to CB, वही सर बोल रहा हूँ वहाँ पोजीशन से AC is equal to CB. AC नहीं बेटा, ये पोजीशन तो कहीं भी हो सकती है. A position can be here also. A position can be here also. A position can be anywhere, बेटा. सर C के ऊपर लिमिट है ना. C के ऊपर जब हम आएंगे तो द लाइट हाउस शुड बी राइट अहेड. मतलब डायरेक्शन जो अपने हमारे जहाज की होगी उसकी डायरेक्शन के बिल्कुल सामने होगा. एंड देन करंट भी है और करंट की सेट एंड ड्रिफ्ट दोनों चीजें हैं. सेट एंड ड्रिफ्ट हमने लाइट हाउस पे लगा दी और लाइट हाउस के ऊपर लगा के C से लाइन लगा दी B तक. तो इसमें मुझे सर ये समझ नहीं आ रहा कि जो शिप की स्पीड AC वाली हमने जो ली है उसका इस पे क्या बेयरिंग आ गया CB में. बेटा AC जो है ये हमने स्पीड के साथ कट नहीं किया है. हमने जो C पॉइंट ऑब्टेन सर किया था. सबसे पहले सर इससे पहले हमने ऊपर शिप की स्पीड देखी थी ना सर, जो सबसे पहले ऊपर पॉइंट लगाए थे AD. वो स्पीड कहाँ पे फिट होगी. ओके, आई विल टेल यू बेटा. लेट अस से उन्होंने हमें डिस्टेंस दिया 10 माइल्स का, कि 10 माइल्स ऑफ ये जो लाइट हाउस है ये आपको राइट अहेड दिखना चाहिए. ओके, लेट अस से हमारी इंजन स्पीड भी 10 नॉट्स ही है. ओके, इंजन स्पीड इज 10 नॉट्स. तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले सर तो बदल देते हैं इंजन स्पीड. सर इंजन स्पीड 12 कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. 10 में तो फिर ओके वो बेटा, सेम बात ओके हो ओके. What you do is let us take some hypothetical value and solve it. Okay. This fix is okay. Point A is all right. जी सर, दिस इज परफेक्ट. Perfect. ये कोई एक इंजन स्पीड दे दो बेटा, any इंजन स्पीड. सर 12 नॉट. Okay, let's take it as 12 knots. So engine speed is 12 knots. Okay. अब बेटा एक आपने मुझे डिस्टेंस देना है जिसपे हमने इस लाइट हाउस को राइट अहेड देखना है. So you can give me सर any 10 Okay. 10 माइल. 10 miles off this light should be right ahead. Okay, current का set and drift यही रख लें which is there. जी सर, करंट इज सेम. तो हमने देखो क्या किया बेटा, हमारी इंजन स्पीड 12 नॉट्स है और हमारा ये जो डिस्टेंस है ये 10 माइल्स है. सबसे पहले तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि ये जो 10 माइल्स का डिस्टेंस है एज पर अवर इंजन स्पीड ऑफ 12 नॉट्स हम कितनी देर में कवर करेंगे. व्हाट इज द टाइम. 50 minutes. 50 minutes. 50 मिनट सर. 50. तो हमारे पास टाइम आ गया बेटा 50 मिनट्स का. तो वी नो वी आर गोइंग टू कवर दिस डिस्टेंस इन 50 मिनट्स. अब हमने क्या करना है, जो भी करंट का सेट और रेट हमें दिया है, यू कैन टेक एनी सेट एंड रेट ऑल्सो बेटा. सेट इज 180 हियर. यू कैन गिव मी एनी रेट ऑफ द करंट, एनी रेट. 3 knots is Okay, let's take it as 3 knots. The rate of the current is 3 knots. Now we have to calculate कि ये 50 मिनट का जो टाइम है इसमें करंट हमें कितनी ड्रिफ्ट जनरेट करके देगा. सर 2.5 माइल. 2.5 माइल्स. ओके, तो जो ड्रिफ्ट आ गई बेटा हमारी ड्रिफ्ट, लेट मी राइट इट हियर. द ड्रिफ्ट ऑफ द करंट इज 2.5 miles. 2.5 miles. अब देखो हमने क्या करना है. सबसे पहले तो हमने ये हुक हेड लाइट पे अपना करंट लगाना है. तो मैंने 180 की डायरेक्शन में करंट अप्लाई किया. अब मैंने इसकी लेंथ कितनी रखनी है, जितनी ये ड्रिफ्ट आई है 50 मिनट में. तो मैंने इसको 2.5 माइल्स कट कर दिया. तो ये मैंने 2.5 माइल्स इसे कट किया. तो यू कैन राइट हियर 2.5 माइल्स. दिस रेफर्स टू हाउ मच टाइम, 50 मिनट्स. ओके, मैं यहाँ ब्रैकेट में 50 मिनट्स भी लिख देता हूँ सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये मैंने टाइम भी लिख दिया. 50 मिनट्स के लिए ये करंट है. लेट अस मार्क इट विद 3 एरोज. सर इसमें जो डिस्टेंस था वो 10 माइल्स, वो डिस्टेंस डीओ था या फिर एडी था.
नहीं बेटा, ये डी पॉइंट नहीं है, दिस इज बेसिकली द रेंज। ओके, डिस्टेंस अभी हमने शो नहीं किया है डायग्राम में। ओके, इफ इट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन, फॉरगेट अबाउट दिस डी। ओके, वो 10 माइल्स का मेरा कहने का मतलब है डिस्टेंस ऑफ राइट हेड था, या फिर जो डिस्टेंस था जिस पे राइट हेड तक जाना है वो वाला डिस्टेंस था 10 माइल्स? इट इज द डिस्टेंस एट विच द लाइट हाउस शुड बी राइट अहेड ऑफ अस। ओके ठीक है, तो उस हिसाब से टाइम कैलकुलेट किया 50 मिनट्स का। एग्जैक्टली। तो अब हमने स्टेप 1 में करंट अप्लाई किया। 2.5 माइल की ड्रिफ्ट आई थी 50 मिनट के लिए, हमने इसकी लेंथ को 2.5 माइल्स कट कर दिया। दैट्स स्टेप नंबर 1। अप टू हियर क्लियर बेटा? स्टेप 1 ओके? ओके। अब बेटा मैंने क्या किया, अब मैंने दूसरी चीज जो की, जो हमारी इनिशियल पोजीशन थी ए पोजीशन, इस ए पोजीशन को करंट वेक्टर के एंड के साथ, जहां पे मेरा करंट वेक्टर एंड हुआ, ज्वाइन कर दिया। ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेप 2 ओके? राइट सर। अब थर्ड चीज मैंने क्या की बेटा, मैंने जो डिस्टेंस ऑफ मुझे दिया गया था, 10 माइल्स ऑफ इन्होंने मुझे डिस्टेंस ऑफ दिया था। आई केप्ट माई कंपस ऑन द लाइट हाउस, ओपनड इट 10 माइल, और मैंने 10 माइल्स कंपस के साथ यहाँ पे इसको कट कर दिया। ओके, एक आर्क ड्रॉ कर दी मैंने। तो दिस इज हैविंग ए रेडियस ऑफ 10 माइल। जो ये आर्क ड्रॉ की है मैंने, दिस आर्क इज सेंटर्ड एट द लाइट, हुक हेड लाइट, और इट इज आर्क ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 10 माइल्स। ये भी स्टेप ओके है बेटा? यस सर, वो लाइट हाउस से हमने 10 कैलकुलेट किए थे 12 नॉट की स्पीड पे, तो वो काट दिया यहाँ पे। राइट। अब इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया विद द लाइट हाउस। नाउ व्हेन यू ज्वाइन इट विद द लाइट हाउस, देन यू रियलाइज कि ये जो ट्राइंगल हमारे पास आ गई है, ये कैसी ट्राइंगल है? CO वेक्टर जो है, दिस वी कैन कॉल इट एज बी। CO वेक्टर इज बेसिकली अवर कोर्स स्टीयर्ड वेक्टर। देखो हमने इसको इंजन स्पीड के अकॉर्डिंगली टाइम निकाला था ना, कि C to O, ये जो डिस्टेंस है 10 माइल, हमारी इंजन स्पीड में ये कितने मिनट के लिए होगा? तो C to O इज बेसिकली रेलेवेंट टू 50 मिनट्स ऑफ आवर इंजन स्पीड। करेक्ट बेटा? जी सर, इसी के हिसाब से फिर वो वहाँ पे ड्रिफ्ट लगाई थी। एग्जैक्टली। अब देखो जो करंट वेक्टर हमने लगाया, दिस इज ऑल्सो फॉर 50 मिनट्स, एंड जो ये तीसरा वेक्टर आ गया हमारा, विच इज द रिजल्टेंट ऑफ द अदर टू वेक्टर्स, ये हमारा स्पीड मेड गुड एंड कोर्स मेड गुड। वेरी गुड, ये होगा हमारा कोर्स मेड गुड। एंड ये स्पीड मेड गुड नहीं होगा बेटा, क्योंकि 50 मिनट की ट्राइंगल है। तो दिस विल बी द डिस्टेंस मेड गुड फॉर 50 मिनट्स। हम यहाँ से स्पीड मेड गुड को कैलकुलेट करेंगे। 50 मिनट्स के लिए डिस्टेंस हमारे पास आ गया, हम यहाँ से स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे। हाउ मच डिस्टेंस वी विल बी कवरिंग इन 60 मिनट्स, दैट विल गिव अस द स्पीड मेड गुड। तो इज इट ओके नाउ बेटा? सर इससे पहले वाला केस जो आपने बताया था, जिसमें आप ADO वाला केस बता रहे थे, तो दैट टाइम यू टोल्ड दैट D was the distance off from the lighthouse, so we'll have to calculate the distance first from A to D and accordingly we have to apply the drift on the lighthouse. Now इस केस में आप कह रहे हो कि जो distance of 10 miles था उसी के लिए कैलकुलेट करेंगे टाइम? नहीं बेटा, अगर मैंने A to D बोला है, देन आई मे हैव स्पेल्ड इट रॉन्गली। A to D डिस्टेंस हम कोई कैलकुलेट नहीं करते। We calculate the time as per the distance off from the lighthouse. ये जो D मैंने यहाँ शो किया है, this is basically the distance from the lighthouse to this arc. ओके सर, वही कंफ्यूजन। ठीक है सर, थैंक यू। Okay, I will remove नहीं this. सर, आप पहले समझा रहे थे तो दैट थिंग एक्चुअली बीच में दूसरी चीज में थोड़ी कंफ्यूजन कर रही थी, बट इट वाज ऑलराइट। तो इसलिए मैंने वो स्पीड और वो दोनों अलग-अलग करा दिए ताकि मेरा वो कंफ्यूजन निकल जाए। Okay, so is it clear now बेटा? इट इज क्लियर नाउ सर। बेसिकली हमने सबसे पहले जो स्पीड और डिस्टेंस थी उसके हिसाब से ड्रिफ्ट लगा दी पॉइंट पे जाके सीधा हुक हेड पे, और Right. जैसे ही यहाँ पे वो लग गई, उसके बाद जो आर्क है सी वाली, उस आर्क से इसको ज्वाइन कर दिया। फिर उल्टी साइड पे जाके CD ज्वाइन कर दी इसके ऊपर जो है, एंड देन वी हैव एट C फ्रॉम AC, जो पॉइंट C है, दैट पॉइंट पे बिल्कुल सामने होगा उस डिस्टेंस। राइट बेटा, राइट।
अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली जो अभी तक हमने सवाल किए हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये स्टेप्स माइंड में याद होने चाहिए। इट इज नॉट दैट यू कैन think and apply these steps when you are sitting in the exam hall. You cannot do that. अगर आपको ये steps याद नहीं हैं तो आप इसको दिमाग से सोच के नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो आंसर है वो तो एंड में हमारे पास आता है। लास्ट स्टेप जब हम कवर करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये जो ट्राइंगल COB बनी है ये तो हमारी कोर्स स्पीड और करंट ट्राइंगल बन गई है। इनिशियली वी डोंट नो। नाउ व्हेन आई टोल्ड यू अप्लाई द करंट फॉर 50 मिनट्स, now that time we never knew कि ये 50 मिनट्स का करंट हम क्यों लगा रहे हैं। okay, so that way it is a typical kind of question. You should know the steps before you solve this question on the chart. So आपको जो information दी होगी, once you read that information and understand it, आपको इसको देख के ये माइंड में आना चाहिए कि ये साइटिंग एन ऑब्जेक्ट राइट अहेड वाला सवाल है और इसमें हमने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अप्लाई द करंट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। जितना डिस्टेंस ऑफ है उसको कवर करने में आपको जो टाइम लगता है पहले उस टाइम को कैलकुलेट करो। अप्लाई द करंट फॉर दैट मच टाइम एंड ज्वाइन योर इनिशियल पोजीशन विद द करंट वेक्टर। देन यू कैन ड्रॉ द आर्क और फिर आपकी ये COB ट्राइंगल, कोर्स स्पीड एंड करंट ट्राइंगल प्रिपेयर हो जाएगी। So you need to know beforehand in your mind that these are the steps to be carried out. It is not that you can understand and you can follow these steps one by one. That will not happen here. Okay, beta, understood? सर इसी क्वेश्चन में लाइक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एट व्हाट हेडिंग दिस लाइट हाउस विल बी रेज और डिप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है लाइक कि जहां मेरे को CO निकालना पड़े कि ल्यूमिनस रेंज वगैरह डायग्राम से, एंड देन मैं CO को कट कर रहा हूँ तो मेरे को हेडिंग मिल रही है कि इस हेडिंग पे मैं जा रहा हूँ। तो बेटा आ तो सकता है पर उस केस में जो डाटा गिवन है ना वो बदल जाएगा। वो उस केस में आपको या तो कोई फाइनल पोजीशन देंगे दैट द वेसल इज गोइंग हियर, ओके, और फिर आप अपना CMG बना पाओगे एंड यू विल हैव टू कट इट एंड यू विल नीड टू सी व्हाट इज योर CTS, ओके। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे ये लाइट हाउस की बियरिंग क्या आ रही है, मेरा CTS कितना है और एंगल कितना बन रहा है। तो क्वेश्चन विल एंटायरली चेंज। ओके बेटा। तो सर ये कोई दूसरा कंसेप्ट हो गया क्या, मतलब कि या फिर इसी में बनेगा वो? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, वो जो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही आता है जैसे आप देख रहे हो। तो अगर रेजिंग और साइटिंग ये ऑब्जेक्ट राइट अहेड एट ए सर्टेन डिस्टेंस आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा। यही इंफॉर्मेशन आपको दी होगी और एग्जैक्टली यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी होगी, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। ओके सर, ठीक है। एंड सर अगर वो रेजिंग एंड डिपिंग वाला आए इसमें इंक्लूड करके लाइक, तो उसमें वो मुझे पोजीशन देंगे कि वहां मेरे को CMG गिवन होगा लाइक पहले से? हाँ, वो इसमें ऐड किया जा सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे ऐड किया जा सकता है। अगर वो आपको ये डिस्टेंस नहीं देते, ओके, वो आपको बोल देते हैं साइट एन ऑब्जेक्ट राइट अहेड एट इट्स रेजिंग डिस्टेंस, और वो आपको बोल देते हैं रेज दिस लाइट हाउस राइट अहेड, ओके। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई ये लाइट हाउस का रेजिंग डिस्टेंस है कितना। यस सर, वो तो मैं ल्यूमिनस रेंज डायग्राम से कैलकुलेट कर लूंगा या फिर ज्योग्राफिकल रेंज अकॉर्डिंगली। हाँ, आप GR और ल्यूमिनस रेंज दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों में से जो भी छोटी रेंज आएगी दैट इज योर डिस्टेंस D देन। सो आप डिस्टेंस D को कैलकुलेट करोगे बाय कंपेयरिंग ल्यूमिनस रेंज विद द जियोग्राफिकल रेंज। दैट इज द ओनली डिफरेंस व्हिच कैन कम। ओके सर, ठीक है। ओके, so this is okay beta concept now. You want me to repeat it once? सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो जी। सर कई क्वेश्चंस में जो करंट है वो इनिशियल पोजीशन से भी लगती है ना सर, जैसे फाइनल, कई क्वेश्चन में फाइनल पोजीशन से लगती है करंट। बेटा जब हम करंट को अलाउ करते हैं ना, करंट को जब हम अलाउ करते हैं तो पहले CTS वेक्टर है, फिर उसके बाद करंट लगता है। जब करंट को काउंटरएक्ट करते हैं तो करंट को इनिशियल पोजीशन पे लगाते हैं, जो हमने कल कॉन्सेप्ट किया था, यही कॉन्सेप्ट किया था।
ओके, तो जब हम काउंटरैक्टिंग करते हैं तब इनिशियल पोजीशन में लगाते हैं। राइट। ओके ओके Okay, so this is also okay now. Let me repeat it once and then we can proceed ahead. So this is the information which is given to us, the initial position, set and drift of the current, a certain distance at which the lighthouse should be sighted right ahead. अच्छा, अब ये एक्चुअली होगा कैसे? Let me show you. हमने सबसे पहले तो टाइम कैलकुलेट किया, the time required to cover this distance using our engine speed. फिर उसी टाइम के लिए हमने करंट वेक्टर अप्लाई कर दिया, इनिशियल पोजीशन को करंट वेक्टर के साथ हमने ज्वाइन किया एंड ओ पे सेंटर रख के जितना डिस्टेंस ऑफ पे हमें लाइट हाउस को राइट हेड देखना है उतने डिस्टेंस की हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर दी। जहाँ पे ये आर्क हमारे ए बी लाइन को कट करती है उस पे हमने पॉइंट सी बनाया एंड इस सी पॉइंट को ओ के साथ ज्वाइन कर दिया। तो व्हेन यू ज्वाइन सी विद ओ, this becomes your course speed and current vector triangle. CO becomes your course steered and engine speed. OB is obviously the current vector, set and drift of the current. And CB, Charlie Bravo, becomes your course made good and distance made good. अब ये चीज होगी कैसे? देखो जो हमारा शिप है वो स्टीयर कर रहा है ब्लू कलर का कोर्स। So when the ship is at A, it is heading something like this. तो जो राइट हेड है, हमारे राइट हेड जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या ऑब्जेक्ट होगा? द राइट हेड विल बी दिस पर्टिकुलर बॉय, दिस विल बी राइट हेड व्हेन द शिप इज एट पॉइंट ए। जैसे जैसे शिप आगे चलता जाएगा, लेट अस से द शिप हैज रीच्ड दिस पॉइंट, जब शिप यहाँ पहुंचेगा द शिप वुड बी हेडिंग लाइक दिस। अब हमारे राइट हेड क्या होगा? अब हमारे राइट हेड होगा there is no object like head, let us say this Loftus Hall, this will be right ahead। और जब हम चलते चलते पॉइंट सी पे पहुंचेंगे, पॉइंट सी पे हमारे राइट हेड क्या हो जाएगा? हमारे राइट हेड हो जाएगा हुक हेड लाइट। सी से आगे जाएंगे, let us say you reach at this particular point, the ship would be heading in this fashion and अब हमारे राइट हेड क्या होगा? हमारे राइट हेड होगा अब this particular line, this is the direction which will be right ahead। This is how the ship is proceeding ahead, and you see exactly at point C, so many miles off from the light, you will be having this hook head light right ahead of you. So this is clear now, beta? यस सर। यस सर क्लियर। और सर जो टाइम कैलकुलेट करना है वो स्पीड मेड गुड जो हमने निकाली है उसके ऊपर ए से सी पे कैलकुलेट करके लगा देंगे सी वाला पॉइंट। That's right, बेटा। आपने जो ये चार्ली ब्रेवो वेक्टर से अपनी स्पीड मेड गुड कैलकुलेट की है, तो इफ दे आस्क यू एट व्हाट टाइम दिस लाइट हाउस विल बी राइट अहेड, तो आप ये एसी डिस्टेंस को मेजर करोगे चार्ट से एंड इस एसी डिस्टेंस को यू विल सी विद योर स्पीड मेड गुड हाउ मच टाइम यू विल टेक टू रीच अप टू पॉइंट सी। ये आप कैलकुलेट करके आंसर में लिख दोगे। Okay, so this is the concept of sighting an object right ahead at a certain distance with current. So again, remember, इस concept को आपको steps को memorize करना पड़ेगा before you solve this question. If you do not know the steps, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि इसे कैसे solve करना है, क्योंकि ये triangle आप बना नहीं पाओगे। C point को identify करने का जो तरीका है, ये तरीका इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आएगा। ओके, देयर इज नो लॉजिकल मेथड विद व्हिच यू कैन थिंक बिफोरहैंड कि दिस इज हाउ सी विल बी कैलकुलेटेड। यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स, अप्लाई द करंट फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, ज्वाइन एसी एंड देन कट द आर्क ओसी फॉर द गिवन डिस्टेंस, देन यू कैन फाइंड पॉइंट सी। सो रिमेंबर द स्टेप्स व्हेन यू डू दिस क्वेश्चन। नाउ बेटा, इफ यू वांट you can take a screenshot of this slide
So that will give you an idea of how we do it. Okay, beta, this is done now. Yes, sir. Okay. Okay. अब बेटा अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारा that is the concept of using a single position line. Steering safe courses using a single position line. So you want to do this concept today? Is it okay? Shall we proceed ahead, or you want to defer it for the next session? नेक्स्ट सेशन ही सही रहेगा सर, अगर टाइम की प्रॉब्लम नहीं है तो। टाइम की कोई इशू नहीं है बेटा, वी हैव एनफ टाइम। तो नेक्स्ट सेशन सही रहेगा सर। रहने दो सर। ओके, ठीक है बेटा, then we will do this in the next session then. So this is steering safe courses using a single PL. So let me give you a progress chart now. See, what we have done till now is all these topics: chart construction, projection, geographical range, nominal range, luminous range, transfer of position circle, keeping the lighthouse right ahead. And the topics which are remaining is use of a single PL, fish triangle and rendezvous. Okay? आप देखो बेटा, ये तुम्हारा मॉड्यूल 3 था ना। मॉड्यूल 3 एक महीने में करने वाले टॉपिक थे। हमने एक वीक में 5 टॉपिक कर लिए हैं, 3 टॉपिक बचे हैं। तो व्हाटएवर नेक्स्ट सेशन आई गेट विद यू, उसमें हम लोग एटलीस्ट ये 2 टॉपिक कवर कर लेंगे, यूज ऑफ ए सिंगल पीएल एंड फिश ट्रायंगल। ओके, दीज आर लिटिल ट्रिकी टॉपिक्स, सो one सेशन शुड बी गुड एनफ फॉर अस। एंड एक ही टॉपिक और बचेगा, रेंडेवू। तो मोस्ट प्रोबेबली बाय ट्यूसडे आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये कवर अप हो जाएंगे। So your module 3 done in about 10 days. Huh? सर फेज 1 में ब्लाइंड नेविगेशन भी है क्या? बेटा ये जो टॉपिक देख रहे हो ना आप, जो मैंने अभी रोक दिया, यूज ऑफ ए सिंगल पीएल टू स्टीयर सेफ कोर्सेज, इसी को ब्लाइंड नेविगेशन बोलते हैं। बिकॉज ये जो चीज है ये बेसिकली है कि अगर रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी है एंड यू कैन नॉट सी एनीथिंग, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन फिक्सिंग इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, you just got a single PL somewhere. Okay, कोई एक PL आपको मिल गई। Let us say you were able to see the sun from a break in cloud. You took one celestial sight and you plotted a PL. अब उसी PL से आपको बिना कोई ऑब्जेक्ट को देखे सेफ कोर्सेज स्टीयर करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। So that is what this topic is about. Steer safe courses using a single PL. This is a blind navigation technique. ओके सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वही अपना जो चार्टवर्क की नॉर्मली बुक्स है उसी से करें, या फिर पास्ट पेपर्स, या फिर अदरवाइज यू आर गोना गिव सम क्वेश्चंस? बेटा अभी के लिए मैंने क्वेश्चन निकाले नहीं हैं। व्हाट यू कैन डू इज, वंस वी कवर दीज टॉपिक्स, द नवंबर बैच कैंडिडेट्स, you can pick up questions, whichever chart you have, you can pick up questions from past papers. कोई भी क्वेश्चन आने दो, अब आपके टॉपिक सारे कवर हो गए हैं, आप उन क्वेश्चंस पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो एंड यू ट्राई सॉल्विंग देम। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, जस्ट सेंड इट टू मी ओवर व्हाट्सएप। सो द नेक्स्ट क्लास व्हेनेवर वी मीट वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन। ओके, सो जस्ट वेट फॉर मंडे एंड ट्यूसडे, लेट अस कवर अप सिंगल पीएल, रेंडेवू एंड फिश ट्रायंगल। Once these 3 are done, then your job will be to jump into past papers and pick up questions on chart work and solve them. जिस भी क्वेश्चन में आप फंसोगे, डाउट आएगा, उस क्वेश्चन को हम क्लास में डिस्कस करते चले जाएंगे। तो दिसंबर और जनवरी बैच के कैंडिडेट्स हैं, उनको मैं नेक्स्ट टॉपिक पे ले जाऊंगा, विच विल बी अ रिवीजन फॉर द नवंबर बैच। We will be going into familiarization with the almanac and then site solving methods. So
December and January batch will proceed with that topic, and November batch will be practicing chart work and other questions. Cell nav के जो भी questions हैं आपके या chart work के जो भी questions हैं आप past paper से practice करोगे, and we will keep on doing them in the class, whatever gets stuck. ओके सर। सर एक चीज और, हाँ बोलो बेटा। मॉड्यूल 3 जैसे आप कह रहे हैं 10 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे, मंथ की वेट तो नहीं करेंगे? नहीं बेटा, एज आई टोल्ड यू, जो ये नेक्स्ट मॉड्यूल है तो दैट इज बेसिकली फॉर द दिसंबर एंड जनवरी बैच। ये जो नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा होगा इसमें मैं आपके साथ करूंगा एल्मनैक एंड साइट सॉल्विंग मेथड्स। ओके, दैट इज मरपास, लॉन्ग बाय क्रोन, इंटरसेप्ट, एक्स मेरिडियन, पोलारिस, ये 5 मेथड हमने कवर करने हैं। तो साइट सॉल्विंग, एल्मनैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड एजीमुथ, ये हमारा टारगेट है टिल 14th of February। ठीक है सर। ओके ओके ओके। तो और एनी अदर डाउट बेटा? सर एल्मेनाक में सर जो स्टार्स दिए होते हैं, एक तो पहले जो मेन मेजर स्टार्स हैं वो तो हर एक पेज पे होते हैं, और उसके बाद सर जो दूसरे स्टार दिए होते हैं बाद में एंड में जो दिए हुए हैं, उनमें सर अल्फा, ब्रावो ऐसे करके साइन है, ग्रीक अल्फाबेट्स, उनका क्या मतलब है? एक ही स्टार के 3-4 नाम होते हैं, तो माइनर स्टार होते हैं उस स्टार के आसपास? ओके, लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके बेटा, एल्मनैक है आपके पास? इफ यू हैव इट कैन यू कीप इट क्लोज टू यू? मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा बट आई हैव ओनली 1 पेज एट डिस्प्ले। जी सर, आई हैव एल्मेनाक इन माय हैंड। ओके बेटा, बेटा उस पे पेज नंबर 268 ओपन करो, पेज 268। बोलिए सर। ओके, तुम इसी के बारे में पूछ रहे हो ना? जैसे जो पहला स्टार हमें दिखाई दे रहा है इज अल्फा। हाँ सर, एक वाई सेफी, फिर पेगासी, अल्फा पेगासी, फिर ब्रावो पेगासी। That is gamma cephei, then alpha pegasi, then third one is beta pegasi. Okay. अब बेटा ये जो स्टार है, लेट अस टेक द सेकंड स्टार, अल्फा पेगेसी स्टार है हमारा। ओके, तो ये लिस्ट दे रखी है एक स्टार की। ये अल्फा पेगेसी स्टार जो है हमारा, आप अगर राइट साइड में देखोगे कि इसका SHA दिया हुआ है। यू कैन सी द SHA ऑफ द स्टार इज गिवन। और अल्फा पेगेसी का जो SHA है दैट इज 13 degrees 54.5 minutes फॉर जनवरी, राइट? एंड यू सी हियर जी सर, SHA is given up to June. ओके, अब बेटा इस टेबल में मुझे इसी अल्फा पेगेसी का SHA चाहिए जुलाई के लिए। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द नाउ व्हेन यू गो टू द अदर पेज, आप जुलाई में जाते हो तो यहाँ से अल्फा पेगेसी गायब हो जाता है। नाउ यू हैव मार्केप। हाँ सर, यहाँ पे अल्फा पेगासी नहीं है। राइट, सो दिस इज द इशू। तो ये अल्फा पेगेसी जो है ये यहाँ आके मार्केप बन गया है ऑन द राइट साइड। The SHA value is more or less the same. If you check the declination is also the same what it was there in Sure. January to June. So SHA and declination tells us कि ये तो सेम स्टार होना चाहिए, पर इसका नाम अलग अलग है। लेफ्ट पेज में Sure. अल्फा दिया हुआ है, राइट पेज में मार्केप दिया हुआ है। So what is this story? ये बेटा गंगाधर और शक्तिमान वाली स्टोरी है। गंगाधर ही शक्तिमान है। So that is alpha Pegasi and Markup, they are the same star. Only thing is Alpha Pegasi is the Latin name and Markup is the English name. हम लोग अपने एग्जाम में इंग्लिश नेम्स को यूज करते हैं। So if you are looking for this particular star, star number 2, whether the month is January or the month is July, आप अपने आंसर में जो नाम लिखोगे वो मार्केप ही होगा। You will not write Alpha Pegasi.
सर जैसे इनफ है स्टार नंबर 54 ये यहाँ पे जाके पता नहीं कौन सा पेगेसी हो जाता है, ये भी सिंपल है। हाँ, दैट्स राइट बेटा। इसका जो NF नेम है, NF इज द इंग्लिश नेम विच वी विल बी यूजिंग। ओके, जो इसका दूसरा नाम है, इफ यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पेज, दैट्स सम पेगेसी। ओके, सो दैट इज द लैटिन नेम, वी डोंट यूज दिस नेम। तो सर ये दो नेम क्यों लिखे हुए हैं, एक ही लैंग्वेज में क्यों नहीं लिखा हुआ है, दोनों तरफ अलग क्यों है? बेटा अब दोनों में उन्होंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है। लेटिन नेम्स हम यूज नहीं करते, बट इट इज गिवन इन द एल्मनैक। Somebody who is using Latin names, maybe they can also refer to it and see. So as far as our system is concerned, we go by English names. ठीक है सर। Okay. और बोलो बेटा, और any more doubts? Okay, great. So then we break off this session and we meet in the next session next week. So till then, bye bye and see you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, beta. Bye bye. ओके, थैंक यू सर। Thank you.